Lights, camera, action. Yes, friends, we are talking about Hollywood movies, English movies, and how it can be a doorway to your English fluency. A world of visuals, stories, emotions, performances so moving, they don't just entertain, they transform you. Watching powerful stories, brilliant actors, unforgettable scenes, it's personal, emotional, and intellectual, all at the same time. And what's more, the deeper you go, the more it grips you. It moves you, it opens you up, it changes your language and transforms it forever, completely. But you should know what to watch, like you should know which friends to keep, which are worth. This is not only entertainment, it's education, transformation, immersion, and it's a secret weapon to mastering the English language and find your true voice in this noisy world. Hello, everyone. Today I'm super excited about this topic, and the topic is why should you go for English movies with Hindi subtitles to improve your English and fluency? And why I am super excited about it? First of all, because I believe in this. Acting has been my background. So I have been an actor. I have trained myself in the Roshan Taneja acting school in Mumbai, and fortunately, I was lucky enough to be appointed as a faculty there under Roshan Taneja sir. You can go and check about Roshan Taneja's acting school in Mumbai. तो तकरीबन उसमें आधा से ज्यादा तो जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं आज के जनरेशन के, आज से कुछ साल पहले के और पुराने जनरेशन के, माधुरी दीक्षित, गोविंदा, मिठुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, सनी देओल, a host of actors, even Amir Khan, but I think he took personal training with him. So, अब पुराने टाइम के जया बच्चन थी, डैनी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, many, Shakti Kapoor, many of them. So, anyways, we'll discuss this some other time. Roshan Taneja sir had his history with method acting in Hollywood. There he had learned it, and that is what we are talking about, right? English movies, that is Hollywood. Along with me as a faculty, there are some very, very honorable mentions. नसीरुद्दीन शाह वहां पर फैकल्टी थे रोशन तनेजा सर के अंडर, ओमपुरी फैकल्टी थे, और गुलशन ग्रोवर फैकल्टी थे, एक्टिंग फैकल्टी थे वहां पर. इट्स बीन अ ग्रेट प्रिविलेज, एंड to even deserve that privilege, I need to keep performing, keep working hard, keep giving my best. So anyways, so later on after Roshan Taneja, I also got a superb opportunity of working with Anupam Kher's Academy. There also I was an acting faculty. So these two experiences, body और mind को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, आपके स्टेज प्रेजेंस और पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, इन सभी चीज़ों पर मैं लैंग्वेज के साथ इक्वली काम करता हूँ, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. आप लैंग्वेज अच्छा जानते हैं, लेकिन आप स्टेज पे खड़े होकर के वो आप जितना जानते हो उसका 25% भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और कुछ लोग हैं जो लैंग्वेज कम जानते हैं बट स्टेज पर खड़े होकर के ज़्यादा बोल लेते हैं, कंपैरेटिवली एक्सप्रेशन उनका ज़्यादा क्लियर है. लैंग्वेज थोड़ा लिमिटेड ही है बट एक्सप्रेस काफी कुछ कर पाते हैं. तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बॉडी एंड लैंग्वेज, स्पीच एंड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है. ठीक है, आइए सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज मोटिवेशन है, इंगेजमेंट है, लेस लाइक वर्क एंड मोर लाइक प्ले. एक रिसर्च ये भी बताता है कि स्टूडेंट जो फिल्म देखते हैं उनको हायर मोटिवेशन मिलता है और बेटर प्रोग्रेस दिखाते हैं. लैंग्वेज क्या आपको दिखाता है, ऑथेंटिसिटी आता है, उससे आपको सेल्फ लर्निंग होती है, वहां के कल्चर के बारे में आपको पता चलता है. स्टोरी टेलिंग और मेमोरी, नरेशन जो है, किसी भी चीज को जब आप नरेट करते हो स्टोरी फॉर्म में तो 63% याद रखने की कैपेबिलिटी उसमें होती है, रिटेंशन होता है.
और 5% ही होता है अगर आप केवल उनको डेटा दे रहे हैं तो अगर आप स्टोरी के फॉर्म में किसी चीज को नरेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज, स्टोरी, सीन, कंटेक्स्ट, इट बिकम्स स्टिकी, यह दिमाग में याद रहता है आपको बहुत लंबे समय तक। वो फ्रेज आसान हो जाता है याद करना, वो सेंटेंस आसान हो जाता है याद करना, जो कि पार्ट ऑफ अ डायलॉग होता है। सीधी सी बात है, आप एक डायलॉग को कितनी आसानी से याद कर लेते हैं और कितने लंबे समय तक वो याद रहता है, ऐसे किसी एक सेंटेंस को याद करना हो तो कितना मुश्किल होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि आप प्रैक्टिकली कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑथेंटिक इनपुट, तो इमेजेस, साउंड्स एंड एक्सप्रेशन जो है वो पूरे तरीके से आपको एक दुनिया में ले जाता है जो टेक्स्ट बुक नहीं कर सकता। स्कूल के टेक्स्ट बुक या प्रॉपर नॉर्मल टेक्स्ट बुक आपको वहां नहीं ले जा सकता, वो नहीं कर सकता है। रियल अप्रोच टू कम्युनिकेशन, नेचुरल एक्सप्रेशन, एवरीडे लैंग्वेज, सही बात है ना, रियल अप्रोच होता है ना कम्युनिकेशन का, क्योंकि फिल्म्स में हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इमोशनल इंटरैक्शन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, तो रियल और जेन्युइन अप्रोच तो हुआ वो। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हाँ भाई, फिल्म्स में कल्चरल डीएनए तो होता ही है ना उनका। हर फिल्म जो है उस एरिया की के कल्चर का डीएनए होता है उसमें। इडियम्स, बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमर, सोशल बिहेवियर, सब कुछ जो है आप वहां से सीख जाते हैं। लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका सोसाइटी कैसा है, कल्चर कैसा है, ये सब सारी चीजें नेचुरली आपके अंदर आ जाती हैं। मैं अपनी वाइफ से, मेरी वाइफ काफी हॉलीवुड की मूवीज देखती हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था आज इस क्लास से आने से पहले, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा रिसर्च में रहता है कि मैं किस तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। तो उनसे इंफॉर्मेशन निकालना करेक्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत हॉलीवुड मूवीज देखती है, वेब सीरीज, हॉलीवुड मूवीज वगैरह। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ कि ये जो तुम इतने सालों से इतनी मूवीज वगैरह देखी हो, इससे तुम्हारी इंग्लिश में क्या इंप्रूवमेंट आया है या कुछ लगता है फायदा? बोले बिल्कुल बहुत फायदा होता है। आपको वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं लगता, कुछ समय के बाद वो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें, नॉर्मल हो जाता है आपके लिए वो देखना, सुनना, समझना। और उसके बाद फिर जब आप इंग्लिश मूवीज देख लेते हैं, वो नेटिव लोगों के स्पीकर्स को इतना ज्यादा सुन लेते हैं, तो उसके बाद फिर जब कोई नॉर्मली आपसे इंडियन कोई पर्सन आपसे अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझना और रिस्पॉन्ड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑल्दो स्पीकिंग की प्रैक्टिस अपने अलग आपको हेल्प करती है, लेकिन समझना उनको रेस्पॉन्ड करना बहुत इजी हो जाता है। तो वो बोली कि जब कोई फिर आपसे बात करता तो वो तोते नहीं उड़ जाते, वो वाला हालत नहीं होता है कि क्या बोल रहे। So you are comfortably past that stage, क्योंकि आपने बहुत नेटिव लेवल पर बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आप सुन चुके हैं और आप उस पर कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब डुअल कोडिंग होता है, स्पोकन प्लस टेक्स्ट, जब आप सबटाइटल्स में देख रहे हैं तो आसानी से याद होती है, ठीक है। सबटाइटल्स कॉम्प्रिहेंशन के बराबर है, यानी समझ के बराबर है। सबटाइटल्स आप देखते हैं, बहुत आसानी से आपको मूवी की पूरी चीज समझ में आने लगती है और दिमाग बहुत आसानी से उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। फोनेटिक लर्निंग, इंग्लिश विद इंग्लिश सबटाइटल्स, ईयर्स प्लस आईज, तो फोनेटिक लर्निंग इसमें आ जाती है क्योंकि आप उन नेटिव लोगों की लैंग्वेज को बहुत डीपली इंगेज हो रहे होते हैं। और खास करके तब फोनेटिक्स में फायदा होता है जब आप इंग्लिश मूवीज इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आईज और ईयर्स एक साथ काम करता है, इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश सबटाइटल्स। एक्टिव व्यूइंग, अब आइए वो पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इस चीज का बेनिफिट आपको कैसे लेना है, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको लेने के लिए एक्टिव व्यूइंग आपको करना जरूरी है। वो जो फाइनल पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, एक्टिव व्यूइंग का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ देखना ही नहीं है। अगर आपको मूवीज देखना है, बीच बीच में आप रोकिए, समझने के लिए सबटाइटल्स पे पॉज कीजिए, सबटाइटल्स क्या बोल रहा है पढ़ सकते हैं, कभी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ये सारी चीजों से आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है। ये नेचुरली आप करते भी हैं, मैं तो करता था और करता हूं जब मैं देखता हूं मूवीज, तो ठीक है, बीच बीच में कभी। और ये भी आप कर सकते हैं कि आपने मूवी पूरी देख ली, थोड़ा बहुत आपने रिप्ले किया, बाद में उस मूवी में वापस जाकर के आप उस चीजों को स्टडी कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए। और ये जो शैडोइंग है, शैडोइंग मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इट्स नथिंग बट एक्टिंग। आप किसी नेटिव स्पीकर या किसी ऐसे बंदे का जो लैंग्वेज बोल रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है उसका, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो
समाज, सोसाइटी, जिस जगह वो बैठ रहा है, जिससे जैसे बात बिहेव कर रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर आप मिमिक करते हैं, उसके जैसे बिहेव करना शुरू करते हैं, उसको एग्जैक्टली आप कॉपी करना चाहते हैं। और धीरे धीरे करके जो एक्टर्स लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। एंड मच ऑफ इंग्लिश लर्निंग इज एक्टिंग इन सटल फॉर्म। आप एक्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। कितने लोगों से आप सुनिएगा, कितने लोगों से कि उन्होंने बोला कि मैंने न्यूज चैनल से मिमिक करते हुए सीखा, CNN BBC से मिमिक करते हुए सीखा, शैडोइंग किया, ऑडियो देखता था, मूवीज देखता था, उसको वापस से बोलता था, या पॉडकास्ट देखता था, उसको वापस से रिपीट करता था। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। और ये तब फायदा होता है जब सामने आपको कोई स्पीकर नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर पाए, तो ये तरीका बहुत ज्यादा काम करता है। और ये तकरीबन एक मिथ है कि आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते अनलेस कोई आपके सामने खड़ा हो। तो आप बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपनी लैंग्वेज में ला सकते हैं विदाउट इवन somebody standing in front of you and you are having a conversation with them. Even if there is nobody around, you can still keep improving. You can still keep working on your English. So keep this in mind. And that is why watching English news, reading English newspapers, reading fiction novels, watching podcasts, English movies with subtitles, these are all creating the inner and outer English environment around you. Keep this in mind.